So today we will discuss about the urban local bodies questions. Okay, so urban means the urban and the rural local bodies questions. Those are the this Panchayati Raj institutions and all. Okay, so this topic is very important, particularly for the GS2. Every year there are at least one question from this topic. Even last year and last to last year, there were the questions. We'll discuss those questions only. The first, we'll understand the demand of the question as we have discussed earlier. ठीक है, पहले इसका डिमांड समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. After understanding the demand, then we'll also discuss ki how you can structure that answer. Okay. And then we'll also practice a few questions like last time. So last time we had practiced the one question. Today we'll try to practice at least the two questions. Okay. So just be focused here. And if you think any point is important, keep taking a notes. Also keep a few blank sheets with you. कुछ blank sheets आपके पास आपको रखना है so that कि जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो you should have some ready to use. Okay. Hmm. So यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है. This question was asked in a 2024. This question was for the 150 words and the 10 marks. So basically, whenever you have to write the question for the one and that 10 marks, so you will have the 2 pages, and you have to finish within a 7 minutes. There will be the time limit of the 7 minutes only. So try to finish these type of questions within a 7 or the 6 minutes only. So let's understand the question. What the question is. So the question is analyze the role of local bodies in providing the good governance at the local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies. So first we'll see what it is saying. It is saying analyze. Okay, so directive word is analyze. So what is asking to analyze? The role of local bodies. Okay, so role of local bodies in providing good governance at the local level. So usually what students do when they have the question related to the local bodies, they end up writing only about the Panchayati Raj institutions. So if you have read about the 73rd and the 74th amendment, so we know that these local bodies include the rural as per the 73rd amendment and the urban local bodies. Okay, so here the analyze the role of local bodies in providing the good governance at the local level. You have to think about both the things, that the rural as well as the urban local bodies. ठीक है, आपको गांव के जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके बारे में भी सोचना है. एंड अगेन आपको जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखना है. ठीक है. So what he is asking? Analyze. Okay. So the directive word is the analyze. So understand the meaning of this analyze directive word. So this analyze means to not just to discuss. Okay. So there are multiple this directive words like a discuss, critically examine, and all. So here you have to Kush Gore, if you have any question, you can just write in the comments. Okay, so there is a chat box. You can write as a message. I will try to address that later. And I will also take your doubts at the end of the session. Don't worry. So analyze here. The analyze means you have to understand the deeper connections. Okay. So for example, अगर ये analyze की जगह पे होता कि list the role of local bodies in providing the good governance at the local level. अगर आपको सिर्फ बताते कि एन्यूमरेट करो या फिर लिस्ट करो या फिर डिस्कस करो तो यू नीड नॉट टू गो इनटू द डीपर. ओके, यहाँ पे आपको क्या है ना कि इसका डेप्थ में इन डेप्थ एनालिसिस करना है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि व्हेन वी एनालाइज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ पे देयर आर फ्यू केसेस ऑफ द स्टैम्पेड. ओके, सो इन केस ऑफ द स्टैम्पेड we'll analyze means we'll take details ki why this things happening. Okay, so in same way here we have to find out this role of local bodies. Local bodies means gram panchayat and the municipal corporations. We can take the examples in providing the good governance at the local level. Every word in your question is a very important while writing the answer. Hmm. Don't try writing anything that is coming to your mind.
ठीक है, बहुत सारे बच्चों के केस में मैंने ये देखा है कि उनके दिमाग में जो चीज आती है वो लिख देते हैं, वो कभी नहीं सोचते इसका क्या, लाइक कि इसका कोई फायदा है नहीं है। ओके, सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड, analyze the role. So that's why I'm reading it again and again, and keep reading with me again and again. Once you understand these PYQs, the pattern of questions asked by the UPSC, it will be easier for you whenever you write the question. So let's again analyze it. So analyze the role of local bodies in providing the good governance at the local level. So we have understood the meaning of analyze. Okay. We have also understood what we have to write in case of the local bodies. Okay, so in case of the local bodies, we have to consider both the rural local bodies and the urban local bodies in providing the good governance. So what is a good governance? We have to think about this thing. What is a good governance? Unless and until we don't know what is a good governance, we will not be able to structure this question properly. So let's see what is a good governance. So basically, this good governance, you can keep in mind these mnemonic for, so you can just keep in mind few words, at least keywords. So key aspects of the good governance include, is a P for the participation. You can just आप इस चीज को जो participate ये जो कीवर्ड है इसे ध्यान में रख सकते हो. You can note down this thing. So P for the participation, A is for the accountability, R is for the responsiveness, T is for the transparency, then I is for the inclusiveness, C is for the consensus. Then again ये जो I है इसको आप E consider कर सकते हो. You can consider this I as a E, and this E means the effectiveness and the efficiency. Then P is for the professionalism, A is for the adherence to the rule of law, T is for the timeliness, and E is for the equity. Keep in mind it may take a 30 minutes to analyze the one question only. Okay, लेकिन as long as I do not understand this question, I will not move to the next question. So यहाँ पे हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होता है तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं दिखेंगे. बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग कि जब भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, एवरीवन इज रेसिंग. ठीक है, सभी को एक रेस, सभी लोग सिर्फ रेस में भाग रहे हैं कि मुझे आई हैव टू कंप्लीट दिस बुक एंड दैट बुक एंड आई हैव टू कंप्लीट जस्ट राइट द आंसर्स. सो देखिए, दिस विल नॉट हेल्प यू टू गिव द रिजल्ट्स. इफ यू वांट रिजल्ट्स, इफ यू वांट टॉप रैंक, ठीक है, अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको एक स्लोली हर चीज को समझ के तभी जाके आपको उसको आप लिख पाओगे. नहीं तो you will write only a superficial answers, and if you write a superficial answers you will get a 3 marks or the 2 marks out of the 10, and you will not clear the exam. So if you are planning for the ultimate, like for the top ranks, you should have the very good conceptual clarity. So let's understand again, let's read this again. So key aspects of the good governance, these are the participation, accountability, responsiveness, transparency, inclusiveness, consensus oriented, effectiveness and efficiency, then the professionalism, adherence to the rule of law, timeliness and equity. Now we'll go again to the question, we'll understand this question again. So the question was saying, analyze the role of local bodies in providing the good governance at the local level. Now let's see how the local bodies can provide the good governance. So if we are thinking that local bodies will provide the good governance, then local bodies are providing all these things. Okay. If we think, it means if you are saying the local bodies are providing a good governance, so local bodies are providing all these things, or the local bodies will have these features. So how? So let's see how these local bodies will connect, we can connect with the good governance. So for example, participation. Okay, so participation, आपने देखा होगा, we say that कि this panchayati raj institution, municipal corporation, these are the like where the anyone can participate. ओके, इन केस ऑफ द इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस में हम हमारे मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. सो दैट इज अ पार्टिसिपेशन, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ द पार्टिसिपेशन. और पीपल आर आल्सो एंगेज इन अ ग्राम सभा, सो दैट इज आल्सो पार्टिसिपेशन. People are also engaged in case of the ward committees in the this like urban local bodies. So participation is about the election, participation is about the members, participation is about the gram sabha meetings and the ward committee meetings. Okay, then
Let's see the next word, that is accountability. So accountability is also a key aspect of the good governance, and how the urban local bodies can make it. So like for example, in case of the social audit, okay, many of the regular social audits are done. So that's how you can connect the accountability with the this good governance. The next word is the responsiveness. Responsiveness, like for example, the urban local body bureaucracy, or the even the gram sevaks and all. So all these should be responsive. Then only it will be the good governance. Then transparency. Transparency, you can again connect with the this social audit, or you can also connect with the RTI and all. So you can file a RTI, you can ask for the information, so that all will come under this transparency. Then the inclusiveness. So if you have read about the 73rd and the 74th amendment, there are the provisions for the reservation of the seats for the scheduled caste, scheduled tribes, and the women. So that will make it inclusive. Okay, and many states have made it compulsory for the 50% reserve seats of the reservation. Okay, so that will make inclusive. Then consensus oriented. Consensus oriented means all people are taking a decision after a discussion only. So that is how the consensus. So this happens in the meetings. Then effectiveness and efficiency. For example, providing the services. The service provision should be effective and efficient. Professionalism. So those who are providing the governance, okay, like for example, members, or the municipal commissioners, or the other bureaucrats too, or the other members too, they should be professional. Means they should know their job, what they have to do, and they should have the technical knowledge. And then A is for the adherence to the rule of law. So whatever is done, it should be according to the rules. Okay. Timeliness means the thing should happen in a given time. For example, if there is any provision for the sanitation, okay, अगर कोई कचरे वाला आता है, वो कचरा अगर उठा के लेके जाता है, so ये this is the responsibility. Sanitation is the responsibility of the local bodies. So अभी local bodies में अगर responsibility है, so what they should do, ये timeliness कि ये रोज सुबह 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, and if he is not coming to pick this, ठीक है, अगर ये जो सफाई वाले हैं अगर ये नहीं आते हैं, so in that case there should be a mechanism to complaint. Okay, so फिर ये क्या होगा, so here you have the accountability again. Fine. Then equity. Equity means everyone should get a equal opportunity there. ठीक है, लाइक कि हमने देखा है जैसे कि रिजर्वेशन है SC ST वुमन के लिए, दैट इज, देन इवन इन केस ऑफ द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में भी एवरीवन शुड गेट अ वॉइस. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो गुड गवर्नेंस के की एस्पेक्ट्स मैंने ये दिए हैं पार्टिसिपेट, इन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द अर्बन एंड द रूरल लोकल बॉडीज. फाइन, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स हियर? देन विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट. ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज bring out the pros and the cons merging the rural bodies with the urban local bodies. So whenever the question is asked in a UPSC na, you should ask yourself why this question is asked, कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा, what may be the reason behind this. So देखिए क्वेश्चन क्या है, bring out the pros and cons of merging the rural and urban local bodies. ठीक है, ये पूछ रहे हैं अबाउट कि ये जो मर्ज कर रहे हैं ना अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज का, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है. सो ये रीजंस कि व्हाई, ठीक है, या फिर वेयर वी आर सीइंग दिस रूरल, कि कहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो रूरल लोकल बॉडीज है और अर्बन लोकल बॉडीज है इसका मर्ज हो रहा है. सो अगर आप देखो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द मेट्रो सिटीज लाइक Bangalore, Hyderabad,
दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एरिया, कि जो पेरीफेरी पे जो गांव थे, सो व्हाट एवर द नंबर ऑफ विलेजेस ऑन द पेरीफेरी एरियाज, जो पेरीफेरी पे जो गांव थे, तो वहां पे क्या कर रहे हैं ना, कि वो सारे मर्ज हो रहे हैं इन द लाइक जो मेन जो अर्बन है सिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लेते हो बैंगलोर का, तो बैंगलोर सेंट्रल जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सो जो लाइक की अर्बन एरिया है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द म्युनिसिपलिटी। बट उस पे पेरीफेरी पे बहुत सारे गांव है जहाँ पे ग्राम पंचायत से, ठीक है। अगर वहां पे जो अगर ग्राम पंचायत है, तो उनका जो कंट्रोल है, दैट इज डन बाय दिस ग्राम पंचायत ओनली। बट अभी हमें व्हाट वी आर सीइंग रिसेंटली, दैट जैसे जैसे ये जो शहर है ये बड़े होते जा रहे हैं, एज दिस अर्बन सेंटर्स आर स्प्रेडिंग, तो द पीपल आर स्टार्टेड रिलोकेटिंग देयर, ठीक है, कि लोग वहां जा रहे हैं, उन्हें सस्ते में वहां पे जमीन मिल रही है, एंड दे आर सेटल्ड देयर, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे और भी ज्यादा लोग वहां पे मूव होंगे, और जैसे जैसे ये लोग मूव हो रहे हैं, इवन वहां पे भी हमें प्लॉट के रेट भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एंड ऑल थिंग्स वी आर सीइंग देयर। तो ये जो अर्बन और रूरल वाला जो डिफरेंस था, वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो रूरल एरियाज है ना, वहां पे वो एमिनिटीज नहीं है, दोज एमिनिटीज आर मिसिंग। एंड ये जो लोग हैं, जो अर्बन से रूरल एरिया में या फिर वहां पे जो सस्ते में जमीन है वहां पे रह रहे हैं, तो उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। अगेन, जो हमारे अर्बन सेंटर्स है, दोज आर ओवर क्राउडेड, ठीक है। वो ओवर क्राउडेड होने की वजह से बहुत सारे लोग वहां पे मूव हो रहे हैं, या फिर इवन अ गवर्नमेंट इज अल्सो, कि गवर्नमेंट अल्सो प्रमोटिंग कि यू कैन लिव हियर, ठीक है। तो ये लोग जैसे जैसे आसपास रहने जाएंगे, तो उन्हें अर्बन एमिनिटीज लगेंगी, या फिर अगर इफ दे आर लाइक वर्किंग इन द अर्बन एरियाज, तो उनके रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स थे जो अर्बन एरियाज के थे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन एंड ऑल, इन सभी को हमें वहां पे भी प्रोविजन करना जरूरी है। तो इसी वजह से ये जो अर्बन सेंटर से ये मर्ज होते जा रहे हैं इन द रूरल एरियाज। इफ यू टेक एग्जांपल्स ऑफ द पुणे, ठीक है, तो पुणे में भी क्या है ना, सेम सिचुएशन है। इफ यू सी कि सेंट्रल पुणे जो है, सेंट्रल पुणे इज अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड अगेन जो आजू बाजू के छोटे छोटे गांव है, तो वो भी अभी मर्ज होते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो गवर्नेंस है, दैट इज मेंटेन्ड बाय दी ग्राम पंचायत ओनली। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि जो ग्राम पंचायत से उनके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है। ओके, व्हाट एवर एक्सपर्टाइज नीडेड फॉर दी लाइक कि इनकी जो डिमांड्स है वो पूरे करने के लिए। अनदर थिंग, इनके पास उतने फंड्स भी नहीं होते हैं। ओके, देन थर्ड थिंग जो इशू है, कि डेवलपमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स कि जो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, उनमें कुछ ना कुछ कोहेरेंस होना चाहिए। नहीं तो अर्बन एरियाज तो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज से वो अभी भी बैकवर्ड ही रहेंगे जो आसपास के हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन दिस बैकग्राउंड ओनली। अगर आपने दिल्ली में देखा होगा, तो दिल्ली में भी ऐसी ही सिचुएशन है। दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली है, ल्यूटन्स दिल्ली है एंड ऑल, दोस इज कमिंग अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड अगेन, जो उसका पेरीफेरी वाला रीजन है, अभी हम जो एनसीआर वाला वगैरह रीजन दिख रहे हैं, सो वो सारे गांव थे पहले, ठीक है। अब मेट्रो से कनेक्ट करना है, तो वहां पे कोई तो भी इंटीग्रेटेड एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द इशू। क्लियर? You have to be very clear about the question. If you are not clear about the question, you will not be able to address it properly. Okay, so आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्यों पूछा गया है, ठीक है। अब इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ इट इज अ वेरी इजी, अगर आपको एक बार इसका कंसेप्ट समझ जाए। तो लेट्स सी कि व्हाट यू कैन राइट। सो प्रोज एंड कॉन्स मैंने पूछा है। सो व्हाट आर द प्रोज? सो क्या होगा ना, कि व्हेन वी हैव जब हम एक सिंगल अथॉरिटी रहेंगी ऑफ द मर्जिंग, जब इसको मर्ज किया जाएगा, सिंगल अथॉरिटी रहेगी रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इन सच एरियाज, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी द इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग पे लैंड यूज कैसे करना है, या फिर वाटर रिसोर्सेस है, इन्हें कैसे यूज करना है। सो दैट विल बी द इंटीग्रेटेड प्लानिंग, और डेवलपमेंट भी इंटीग्रेटेड रहेगा।
ये हैphazard वे में नहीं होगा कि एक एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, दूसरे एरिया में सैनिटेशन की सर्विसेज नहीं है, ऐसा नहीं होगा. इट विल बी इंटीग्रेटेड, ऑल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन द एवरी एरिया. सो अनदर थिंग कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वाटर, सैनिटेशन, ये रूरल अर्बन एक जो है एरिया यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा. देन जो रिसोर्स पुलिंग है, तो रिसोर्स पुलिंग विल बी वेरी गुड. ठीक है, एक बेटर रिसोर्स पुलिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहे या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस रहे, तो अगर ये रिसोर्स पुलिंग अगर अच्छे से हो जाए, देन इट विल लीड टू द इकोनॉमीज ऑफ स्किल, की जो सर्विस डिलीवरी है वो भी बेटर रहेगा. देन जो अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस है, दैट विल बी एड्रेस्ड इन अ प्रॉपर वे. फॉर एग्जांपल अभी जो हम स्लम्स वगैरह देख रहे हैं, सो व्हाई वी आर सीइंग द स्लम्स, बिकॉज की अर्बन एरियाज में वहां पे आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है. बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड हाउसेस इन द रूरल एरियाज, तो लोग तो वहां रहेंगे ना. ठीक है, उन्हें थोड़ी स्लम में रहना है. सो तो लोग वहां पे मूव करेंगे. अगर हम वहां पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां से हम मेट्रोज डेवलप कर सकते हैं या फिर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, तो पीपल आर लिविंग इन द पेरिफेरी एरिया, तो वो रहने के लिए वहां है, काम करने के लिए वो शहर में आ रहे हैं. सो दैट विल की जो हमारे आज के जो अर्बन सेंटर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो हम कम कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो सिंगल अथॉरिटी रहे ना, तो जुरिस्डिक्शन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी इशू सॉल्व हो जाएंगे. लाइक कि ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है, इनकी जुरिस्डिक्शन में बहुत बार इशू होता है. तो अगर आप जाओ वहां पे डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो वो बोलेंगे कि ग्राम पंचायत वाले बोलेंगे कि ये तो म्युनिसिपैलिटी में आता है, म्युनिसिपैलिटी वाले बोलेंगे कि ये तो ग्राम पंचायत में आता है. तो ये वाले इश्यूज नहीं होंगे. तो इस तरीके के अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो ये इश्यूज नहीं होंगे. एक सिंगल अथॉरिटी रहेगा, विल नो कि किसे अकाउंटेबल हमें, लाइक हु विल बी द अकाउंटेबल फॉर द वट एवर थिंग्स हैपनिंग हियर. ठीक है, और ये रीजनल डेवलपमेंट को ये करेगा, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तैयार होगा, रूरल अर्बन डिवाइड कम होगा. सो दीज वेर ऑल द प्रोज वी हैव डिस्कस. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स. अगर हम ये रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को अगर मर्ज कर देना, तो पहला है कि अगेन इट विल लीड टू द लार्जर ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज. ओके, एक लार्जर गवर्नेंस सिस्टम तैयार होगा, बट इट विल आल्सो क्रिएट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, जो लोकल लोग हैं, लाइक कि एक समझ लो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हमने बना दिया, तो हमारा जो 73rd और 74th अमेंडमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वही डिफीट हो जाएगा. ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि एक सिंगल अथॉरिटी आएंगी, एंड दैट सिंगल अथॉरिटी मे लीड टू कि मे इफ इट इज नॉट इलेक्टेड, अगर वो इलेक्टेड नहीं है, गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट कर दिया, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिव. हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स वर्क. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के इशू हो गए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस में लीड टू कि जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे टू दीज बॉडीज. देन फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज है, तो वो हम उनके जो डिमांड्स है वो पहले करें, कंप्लीट करेंगे विद द रिसोर्सेज. और जो रूरल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके डिमांड्स पूरे नहीं होंगे, इक्विटेबल शेयर नहीं मिलेगा. देन इसके बाद में नेक्स्ट चैलेंजेस की लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, एंड लास्ट वन इज द कि उनका जो रूरल आइडेंटिटी है. ठीक है, वो जो गांव का जो आइडेंटिटी है ना, जैसे हम देखते हो पंचायत में. ठीक है, अभी वो वेब सीरीज आया है, सो इन दैट केस हमें दिखता है कि गांव में वो स्पेशल आइडेंटिटी इज देयर. व्हाई? बिकॉज ये अभी तक मर्ज नहीं हुआ है अर्बन सेंटर्स से, तो उनका जो स्पेशल आइडेंटिटी है दैट कैन बी थ्रेटन. Okay, these are the pros and the cons of the merging the rural local bodies with the urban local bodies. But हमेशा keep in mind that you should not just write about the cons and like कि ऐसा मत करना कि सिर्फ limitations लिख दिए या फिर cons लिख दिए. You should also write the way forward or the solutions, whatever issues you have discussed. ठीक है, तो वहां पे आपको उसके solutions भी लिखने हैं. For example, द सॉल्यूशन कैन बी कि यू कैन अडॉप्ट द फ्लेक्सिबल मॉडल. ठीक है, कि कोई फ्लेक्सिबल मॉडल लाइक कि जहां पे कोऑर्डिनेशन हो जाए, अर्बन रूरल लिंकेज हो जाए विदाउट अ कंप्लीट मर्जर. तो हमें कंप्लीट मर्जर नहीं करना है, हमें जैसे बुद्धा ने बताया हुआ है मिडिल पाथ. ठीक है, कि जहां पे हमें बैलेंस करना है बोथ. ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक अथॉरिटी हम बना सकते हैं पर्टिकुलरली फॉर दिस पेरिफेरल एरिया, कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए. देन जो हमारे लोकल बॉडीज है उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. देन मर्जर्स कर सकते हैं. ओके, रूरल अर्बन इंडिपेंडेंस, लाइक की बोथ शुड बी द इंडिपेंडेंट इन देयर आइडेंटिटी. ठीक है, तो इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो.
अब देखिए, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग. द बिगेस्ट चैलेंज हियर इज टू राइट ऑल द पॉइंट्स इन अ 150 वर्ड्स. ओके, बिकॉज मैंने तो अभी आधा घंटा आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इसको हाँ, इसमें 6 to 7 मिनट्स में लिखने के लिए दिस विल बी द बिगेस्ट चैलेंज. अनदर थिंग कि इसको सिर्फ लाइक कि 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. अब मैं बताता हूँ इसे कैसे आप लिख सकते हो एक सिंपल वर्ड्स में डायग्राम्स वगैरह यूज करके, हाउ यू कैन डील विद दिस. So the question is analyze the role of local bodies in providing the good governance. अब देखिए, whenever you get the question related to the local bodies ना, you can introduce with the 73rd and the 74th amendment. You can mention that the 73rd and the 74th amendment have given the this constitutional status to the local bodies. Okay, तो इस तरीके से आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो. While writing answers in the 10 marker question, try to be very brief. ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करना, बहुत शॉर्ट में लिखना है हमें. तो कैसे करेंगे हम? इन वन और द टू सेंटेंसेस हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लिखेंगे. अगेन, वेन एवर यू हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देन ट्राई टू राइट द आर्टिकल्स. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड जस्ट मग अप दैट थिंग. ठीक है, उसको रट लेना. तो उससे क्या होगा कि आपको उस पर अथॉरिटी दिखता है, इट शोज कि आपका उस पर कमांड है. सो जस्ट मेमोराइज दैट थिंग and you can use that in your introduction. So first introduction will write about the 73rd and the 74th amendment. Then the question is about the analysis. So we'll discuss, we'll connect कि गुड गवर्नेंस क्या होता है और ये लोकल लेवल पे किस तरीके से लोकल बॉडीज ला सकती है. देन आप जो भी है, जो पार्टिसिपेट मैंने कीवर्ड बताया था, तो वो सारी चीजें लाइक अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, efficiency, you can just connect with this point. That will be your first part. Second part क्या रहेगा? तो second part will be the pros and the cons of the merging the rural and the local bodies. So first part में हमने analysis कर दिया. एक छोटा सा transition line वहां पे लिखना है. You should write a small transition line that we are seeing the emerging trend of the growing these metropolitan cities. और इन metropolitan cities का growth होने की वजह से we are seeing many of the these villages on the periphery of the towns are getting merged with the अर्बन एरिया. तो इस तरीके से आप बता सकते हो एक छोटा सा ट्रांजिशन एरिया कि हमें ये क्वेश्चन क्यों आया है, सो दैट एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको ये क्वेश्चन पता है, व्हाई इट इज आस्क्ड, आप हवा में बात नहीं कर रहे हो. Then you will discuss about the pros and the cons. तो pros जैसे मैंने बताया है, so you will just make a list of the 3 or 4 points. Cons में भी 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे, and then after that write a way forward. ये सारी चीजें आपको 2 पेज में करनी है. क्लियर? कोई डाउट है पूछ लो. ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एक और एक क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर दैट यू कैन विल टेक वन क्वेश्चन फॉर राइटिंग. देखिए, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स है, यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स. Yes, Nazma, your introduction should be only of the 2 or 3 lines only. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि उससे ज्यादा लिखोगे तो फिर मेन बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. अगर आपको लिखना है गुड गवर्नेंस के, सो यू कैन कोट दिस एग्जांपल्स लाइक दिस इज द केरला पीपल्स प्लान. ये 1996 से शुरू हुआ है एंड इट इज फोकसिंग ऑन द पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, बॉटम अप बजटिंग एंड एम्पावर्ड ग्राम सभास. इसके बाद में ये है बेंगलुरु's वार्ड कमिटीज. So Bengaluru ward committees, it is about the citizen participation in urban governance, local accountability and ward level planning. And the Odisha's Pali Sabhas. These Pali Sabhas क्या करती है ना, तो ये ग्रास रूट डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं. ओके, एंड अनदर particularly in case of the land acquisition and the environmental clearance. तो ये नियमगिरी केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका, Odisha's Pali Sabhas. So these type of case studies you should write in your answers. ओके, अगर आपको नोट डाउन करना है, यू कैन टेक नोट्स ऑफ दिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
चलिए, सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The states in India seems reluctant to empower the urban local bodies both functionally and financially. Comment. Okay. So here, the first thing you have the keyword, there's a directive word, that is a comment. ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन 2024 का था, ये वाला क्वेश्चन 2023 का है. जो जैसे मैंने बताया था, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, दीज अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नजमा, आई विल टेक योर डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी. सो states in India seems reluctant to empower the urban local bodies both functionally as well as the financially. और क्या कहना है आपको, कमेंट करना है. सो इन केस ऑफ द कमेंट, यू शुड शो द बोथ द साइड्स. ठीक है, आपको दोनों साइड्स दिखाने हैं स्टेटमेंट के. दोनों साइड्स बताने के बाद में यू शुड टेक अ स्टैंड टू, कि आपको क्या लगता है वेदर जो भी स्टेटमेंट है वो सही है या फिर गलत है. फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द स्टेट्स इन इंडिया, तो स्टेट्स इन इंडिया का मीनिंग है स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है इन इंडिया आर रिलुक्टेंट, मतलब कि दोज आर नॉट रेडी टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज, कि दोज अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए ये रेडी नहीं है. वो दे आर रिलुक्टेंट बोथ, कि फंक्शंस भी देने के लिए तैयार नहीं है और फाइनेंसेस भी नहीं देने के लिए तैयार है. एंड देन यू आर आस्क्ड टू कमेंट. सो लेट्स सी कि हम क्या लिख सकते हैं. तो देखिए, अगेन जैसे मैंने बताया है कि हियर in these type of questions you can focus on the constitutional dimension. So you can mention about the 74th amendment. Okay, जो 74th amendment है उसका आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो. आपका इंट्रोडक्शन बहुत सही होगा, बहुत अच्छा होगा when you give a constitutional dimension for this. After that you can mention about कि in this 74th amendment 12th schedule was added. ठीक है, कि 12th schedule ऐड किया गया था, and that 12th schedule had a कितने functions है. Anyone tell me how number of functions given in the 12th schedule? Are these the 16, 17, 18 or the 19? और आपको पता है, you can just comment. So in this 12th schedule there are the different functions given, कि ये डेलीगेट करना चाहिए था, डिवॉल्व करना चाहिए था टू द अर्बन बॉडीज, लाइक अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ. ठीक है, सो ये जो मेन जो फंक्शंस है, लाइक अर्बन प्लानिंग है, वाटर सप्लाई है, पब्लिक प्लानिंग है, सो ऑल दिस शुड बी गिवन टू द अर्बन लोकल बॉडीज. ये टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस है ना, दोज आर द 18 फंक्शंस. ओके, राइट प्रिया? सो दीज वर द 18 फंक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट ने देना चाहिए था अर्बन लोकल बॉडीज को, बट दीज वर नॉट गिवन. ठीक है, ये प्रॉपरली दिया नहीं गया है. और जब ये काम है, लाइक कि अर्बन प्लानिंग है या फिर सैनिटेशन है, ये काम इन्होंने बाकी जो बॉडीज है उन्हें दिया गया है. दोज आर आइदर नॉट इलेक्टेड, वो तो इलेक्टेड नहीं है, या फिर यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर जो प्राइवेट बॉडीज थी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ दी बैंगलोर, तो बैंगलोर में क्या है ना कि बीडीए इज देयर, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो इट हैज द पावर्स टू मेक अर्बन प्लानिंग. देन दिल्ली के केस में है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो इस वजह से क्या हुआ ना, कि जो इलेक्टेड लोग हैं जहां पे इनको एम्पावर करना चाहिए था, तो उन्हें वो पावर्स मिले ही नहीं. ठीक है, अनदर थिंग, दिस स्टेट्स, अभी ये तो हमने देखा कि अबाउट द फंक्शंस, फंक्शनली. नाउ लेट्स सी अबाउट द फाइनेंशियली, कि फाइनेंसेस के केस में क्या सीन है. सो फाइनेंशियली व्हाट वी आर सीइंग, दीज आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट. ठीक है, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट पे सेंट्रल जो ग्रांट्स आती है उन पे डिपेंडेंट है. ठीक है, इनके खुद के ऐसे कुछ खास रेवेन्यू सोर्सेस नहीं है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है उनका रिफॉर्म्स किया गया नहीं है. म्युनिसिपल बॉन्ड वाला जो कंसेप्ट है दैट इज आल्सो नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, अगर इनको प्रॉपर्टी टैक्स के रिफॉर्म्स हो जाए, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को एग्जीक्यूट किया जाए अच्छे से, ये जो स्कीम है इसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो देन इनका जो डिपेंडेंस है ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है,
देन प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है वो भी बहुत कम है। इन अर्बन बॉडीज केसेस दिस प्रॉपर्टी टैक्सेस आर वेरी लो बिकॉज प्रॉपर्टी टैक्स वन ऑफ द गुड्स लाइक इनके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट ये भी बहुत कम है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है कुछ स्टेट्स का, लाइक यूपी है, देन द बिहार है, तो यहाँ पे बहुत लो प्रॉपर्टी टैक्सेस है, इस वजह से ये लोग फाइनेंशियली भी एम्पावर नहीं हो पा रहे हैं। गॉट इट। अब इसके बाद में देखिए, तो ये तो मैंने बताया आपको निगेटिव साइड्स कि स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया सिम्स रिलुक्टेंट, तो कहाँ पे, तो फंक्शनली और फाइनेंशियली किस तरीके से रिलुक्टेंट है। बट यहाँ पे जैसे ही आपको कीवर्ड है कमेंट, व्हेन यू आर द कीवर्ड दैट इज अ कमेंट, यू शुड आल्सो शो कि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है। ठीक है, इसका एंटीथेसिस भी आपको बताना है। तो फंक्शनली एंड फाइनेंशियली मैंने आपको यहाँ पे बताया है इन केस ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? So there are the positive aspects too. Like for example, in case of महाराष्ट्र, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। पुणे है, मुंबई है, तो इन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इन सच अ टाइप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड। इसी तरीके से जो तमिलनाडु है, तो चेन्नई कॉर्पोरेशन है, चेन्नई का जो कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे ई गवर्नेंस वाला ये है प्रोजेक्ट्स है। सो दोज यू कैन मेंशन। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजें बुरी है, देर आर ऑल्सो पॉजिटिव स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मुंबई एंड पुणे देर आर द म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इन केस ऑफ द चेन्नई देर आर द ई गवर्नेंस मेथड्स। ओके, सो इस तरीके से आप बता सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट अगेन यू हैव टू गिव अ कमेंट, मतलब कि स्टैंड लेना है। सो दो देर आर फ्यू गुड स्टेप्स कि जहां पे अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर किया गया है फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, बट इन मेजोरिटी केसेस ये नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर ये नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड भी दिया है। ठीक है, तो यू शुड मेंशन द वे फॉरवर्ड। यू कैन मेंशन अबाउट द सेकंड एआरसी। ठीक है, सेकंड एआरसी है, 15 फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने भी बताया कि इनको एम्पावर करना चाहिए। सो हाउ यू कैन मेक इट एम्पावर, तो इसको फंक्शनल और फाइनेंशियल ये दोनों एरियाज में आपको देखना है। सो वेन एवर यू गेट द क्वेश्चन कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि द स्टेट्स इन इंडिया सिम्स रिलुक्टेंट टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, तो आपको ये दोनों डायमेंशन कवर करने हैं कि हाउ वी कैन एम्पावर देम फंक्शनली एंड हाउ वी कैन एम्पावर देम फाइनेंशियली टू। तो आपका जो वे फॉरवर्ड होगा, इन योर वे फॉरवर्ड यू कैन मेक टू पार्ट्स, दैट इज ऑफ द फंक्शंस एंड द फाइनेंसेस। गॉट इट। सो फंक्शंस और फाइनेंसेस का जो वे फॉरवर्ड है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वी कैन मेंशन अबाउट द मैंडेटरी डिवोल्यूशन ऑफ द ऑल 12th फाइनेंस, ये जो 12th शेड्यूल है, इसमें जितने भी फंक्शंस दिए हैं दैट शुड बी डिवॉल्व टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ओनली। ठीक है, इसके बाद में इनका जो है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग शुड बी देयर। इनकी जो फंक्शनरीज है, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, लाइक जो ब्यूरोक्रेट्स है या फिर जो बाकी भी जो सिविल सर्वेंट्स है, इन सभी के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। ओके, ई गवर्नेंस वगैरह ये वाले सिस्टम्स आने चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज है, इनको डिजिटाइज करना चाहिए, लाइक स्मार्ट डैशबोर्ड है एंड ऑल सर्च डिलीवरी के लिए यू कैन मेंशन ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, ये सारे हमेशा के पॉइंट्स होते हैं। आप कुछ आंसर लिखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये पॉइंट्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। तो ये होता फंक्शंस के लिए। अब देखते हैं फाइनेंसेस के लिए, तो प्रॉपर्टी टैक्सेस से वो वाला सिस्टम जो है ये रिफॉर्म करना चाहिए। देन इसके बाद में म्युनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड से देन इन्हें रेगुलर जो भी टैक्स से जो भी ग्रांट्स आ रहे हैं वो रेगुलरली इन्हें मिलने चाहिए। ओके, इसके बाद में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसे भी आप लिंक कर सकते हो यहाँ पे कि देयर कैन बी द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। एनी डाउट हियर? कोई डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आपका जो माइक्रोफोन है उसे आप ऑन करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्लियर? ठीक है, सो
आपके लिए और एक चीज है मेरे पास, यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स, कि ये जो कीवर्ड्स, ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। आई विल टीच यू मोर, आपको फ्यूचर में और भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, विल गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर अचानक से सारे कर देंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो जो एनालाइज वाला कीवर्ड होता है, वहां पे आपको व्हाई एंड हाउ पे फोकस करना है। डिस्कस वाला जो होता है, वहां पे डिफरेंट व्यूज जो होते हैं उन्हें कवर करने होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज उनको कवर करना है। एग्जामिन जो होता है, वहां पे इंस्पेक्शन करना है हमें थोरोली, कि जो भी क्लेम किया है वो वैलिड है या फिर नहीं है। देन क्रिटिकली एनालाइज जो होता है, तो वहां पे आपको फ्लॉज, लिमिट्स और ये सारी चीजें दिखानी है। लाइक कि व्हाई एंड हाउ तो लाइक कि डिस्कस करना ही है, बट वहां पे जो लिमिटेशंस है उन्हें भी डिस्कस करना है। देन जो इवेल्युएट है, वहां पे आपको जजमेंट देना है, सब कुछ डिस्कस करके, प्रोज एंड कॉन्स करके, जैसे हम कमेंट में करते हैं। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। ओके, गुड। ठीक है, आपको ये वाले क्लासेस रेगुलर चाहिए, लाइक वीक में 4 दिन वगैरह? जस्ट टेल मी दिस थिंग। इसी तरीके से, लाइक कि आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, लाइक इसी को और भी वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, लाइक कि डेली हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ ओनली 2 क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस एटलीस्ट द 4 क्वेश्चंस डेली। ठीक है, और रैंडम टॉपिक्स न लेते हुए वीकली शेड्यूल बना के उसको डिस्कस कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो गिव फॉर द मॉडल आंसर्स टू, लाइक कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हम मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक दैट थिंग वी कैन डू। वीक में 4 दिन वगैरह ऐसे कुछ उसका रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सिलेबस वाइज ही करेंगे उसको शेड्यूल बना के। ये आईआर वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, और कुछ मुझे लाइक कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटली ऑन दी पीवाईक्यूज, लेकिन अगर इफ वी डू दिस रेगुलरली, तो वहां पे हम जो करंट अफेयर्स वाले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, पर्टिकुलरली जीएस टू में पीवाईक्यूज उतने नहीं आते हैं, rather जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस है, दोस क्वेश्चन आर आस्क्ड, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम कवर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट, विल थिंक अबाउट दिस। सो अभी के लिए आपको एक क्वेश्चन करना है, सो यू कैन कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। आंसर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश, यू कैन चूज, यू कैन व्हाइल राइटिंग यू कैन चूज द मीडियम यूर। ठीक है, मैं तो मेरे एंड से इंग्लिश में क्वेश्चन दूंगा, बट यू कैन राइट इन दिस वन ऑल्सो, आप हिंदी में लिख सकते हो उसे। ठीक है, सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसे लिखना है, और आपके पास जो टाइम है दैट इज 7 मिनट्स। ओके, 7 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए। सो टाइम विल स्टार्ट नाउ। ट्राई टू राइट वॉट एवर यू कैन। ओके, अगर स्टार्ट नहीं करोगे, अगर लिखने की कोशिश नहीं करोगे, तो कभी भी कोई भी आंसर नहीं लिख पाओगे। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग अ टाइम नाउ, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ओके, 7 मिनट्स आर रिमेनिंग। ओके, 6 मिनट्स आर रिमेनिंग।
5 minutes. Four minutes. 3 minutes. देखिए ट्राई करना बहुत जरूरी होता है. इफ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग. लेकिन ट्राई करोगे तो कभी ना कभी सीख ही जाओगे जल्दी ही. 2 minutes. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds.
Okay, stop writing. ठीक है, how many of you were able to complete the answer? किस किस का आंसर कंप्लीट हुआ है या फिर राइट पे कंप्लीट? कंक्लूजन रह गया। ओके, ठीक है आशीष, गुड। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कीप रीडिंग। ठीक है, वो पढ़ते रहते हैं बट दे नेवर राइट द आंसर। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि जब तक वो लिखते नहीं उन्हें समझ में नहीं आता है कि वेदर कि जो वो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट व्हेन यू अप्लाई, व्हेन यू ट्राई टू राइट, तो आपको ध्यान में आ जाता है चीजें व्हाट यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई लिख के देखना बहुत जरूरी है। भले ही सही लिखोगे गलत लिखोगे बट यू शुड स्टार्ट। हम्म, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, सो ऑल्सो आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, तो आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो ही जाएगा। इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, ये वन डे वाला गेम नहीं होता है, बट राइट डायरेक्शन में करोगे तो इट इज अ पॉसिबल। बट रैंडमली पढ़ोगे, रैंडमली कभी एक क्वेश्चन लिखा कभी नहीं लिखा, तो उससे रिजल्ट नहीं बनते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। मैं जो ये जो मंथन वाला जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम इसे डिस्कस करेंगे, विल इंक्रीज दोस क्वेश्चंस की। अभी 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, मे बी 90 मिनट्स या फिर 120 मिनट्स का सेशन करेंगे, उसमें और भी एक 4 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। और जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज के साथ में करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस है उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड along with that will also give you the notes कि जो आंसर जो भी है उसके मॉडल आंसर वगैरह वो सारी चीजें। सो विल ट्राई टू कवर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही। सो अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक कि ये सेशंस आपको हेल्पफुल है, तो मैं ना एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ वहां पे, गूगल रिव्यू का लिंक है, जस्ट गिव अ रिव्यू देयर। ओके, तो ये फीडबैक मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है। ओके, सो मैंने कमेंट में लिखा है, तो आप वहां पे जाके रिव्यू दे सकते हो। एंड ऑल अदर, अगर किसी को डाउट है यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। जो बाकी लोग हैं वो अभी मीटिंग को लीव कर सकते हैं, यू कैन लीव द क्लास। किसी को अगर डाउट है यू कैन जस्ट स्टे एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, सो विल end the class here. I will again schedule the class soon. Okay, tomorrow or the day after tomorrow we will get the update on your WhatsApp. So thank you and all the best.